Hello and welcome to Weekly Wrap, where we get you latest news and updates of top events from Cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. And I am Vishakha Thakur. Leading virtual digital assets have surrendered to selling pressure that was triggered by the US government liquidating bitcoins, while leading market makers Jane Street and Jump Crypto decided to abandon crypto trading in the US. BTC, the largest cryptocurrency by market capitalization, dropped below the key threshold level of $27,000 for the first time since March. Though it regained the threshold, but it continued to struggle due to inadequate buying interest. Liquidation pressure kept building even as the US regional banking crisis persists. In the latest bank run case, an outflow of deposit at PacWest Bancorp that sent the Los Angeles-based bank's stock price down 22% on Thursday. However, it failed to generate similar frenzy in crypto buying as was witnessed in earlier cases SVB, Signature Bank, etc. BTC was most recently trading 3.23% lower at $26,608. Ether, the second largest cryptocurrency by market capitalization, followed a similar trend. ETH dropped below $1,800 for the first time since late April. It was last trading at $1,764. तो यहाँ विशाखा हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से मतलब एक महीना आप कह सकते हैं कि जो बिटकॉइन के प्राइसेस हैं हम थोड़ा उनको नीचे जाते हुए देख रहे हैं और $27,000 के थ्रेशोल्ड को भी वो ब्रेक कर रहा है, फिर वापस रीगेन कर रहा है, तो वहाँ पे जो है थोड़ी स्ट्रगल देखने को मिल रही है। और वो इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूएस पे जो गवर्नमेंट ने जो है बहुत से बिटकॉइन लिक्विडेट किए, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है और जो मेजर मार्केट मेकर्स हैं लाइक जेन स्ट्रीट एंड जंप क्रिप्टो वो भी दे हैव मूव्ड आउट ऑफ यूएस। तो इस वजह से जो हमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देख रहे हैं और बाइंग इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम देखा जा रहा है। इनफैक्ट जो पहले बैंकिंग क्राइसिस हुए थे ट्रेडिशनल बैंक्स में जैसे कि सिल्वरगेट या एसवीबी में, तो हमने देखा था कि पीपल मूव टुवर्ड्स बिटकॉइन टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसीज एंड वहाँ पे हमने इंटरेस्ट देखा लोगों का। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जब रीजनल बैंक्स में क्राइसिस हुए हैं तो इट हैज़ अफेक्टेड बिटकॉइन। जी बिल्कुल। तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे लो लिक्विडिटी की वजह से जो सेलिंग प्रेशर है वो बढ़ गया है, क्योंकि वो लो लिक्विडिटी की वजह से भी कंसर्न्ड है। और इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि हमने जब देखा कि कुछ टाइम पहले अभी बैंक्स जो कोलैप्स हुए, लेकिन अब देखा जा रहा है कि उसका जो कंटेजन है वो फियर थोड़ा सा कम हो गया है यहाँ पे, क्योंकि जैसे वेस्टर्न अलायंस बैंक है वो दिखा रहे हैं उनके डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आई थिंक उसकी वजह से भी जो फियर है थोड़ा कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो बिटकॉइन एथेरियम का प्राइस है वो नीचे आ रहा है। बिल्कुल जी। Moving on, students in Uttar Pradesh government schools will now learn about cryptocurrencies, drone technology and cutting-edge advances in information technology. For class 11 students, the Internet of Things, artificial intelligence, blockchain technology, augmented and virtual reality, 3D printing and cloud computing have been introduced. The Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad, based in Prayagraj, has revised the syllabus for classes 9 to 12 in accordance with the National Education Policy 2020 and posted it on its official website, according to Board Secretary Dibyakant Shukla. The curriculum for computer learning taught in more than 28,000 schools of UP board is decided by subject experts of the board and not what is prescribed by the National Council of Education, Research and Training (NCERT), board officials said while confirming the development. तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है यूपी गवर्नमेंट का, जो यूपी बोर्ड है। तो जहाँ जो बच्चे थे पहले 9 to 12 क्लास के वो पढ़ते थे C++ और जावा जैसी जो ये लैंग्वेजेस हैं, HTML और C++ जैसी लैंग्वेजेस, अब वो जावा और पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, विच इज़ एक्चुअली गुड, क्योंकि जो आने वाली फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ है वो बहुत ज़्यादा यूज़ में होने वाली है। तो उनके लिए आगे चाहे जॉब की बात हो या किसी भी चीज़ में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो यहाँ पे सिर्फ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही नहीं, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज या जो AI, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ई-गवर्नेंस और AR VR ये सभी उन्हें पढ़ाया जाएगा। तो कुछ समय पहले बजट 2023 में फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये डिक्लेयर किया था कि इंडिया में AI इंस्टीट्यूशंस भी खोले जाएंगे, 3 AI इंस्टीट्यूशंस। सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट मूव बाय यूपी बोर्ड एंड आई थिंक धीरे धीरे सभी वो जैसे CBSE, ICICI सभी को ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे जब इंटरनेट आया था तो बहुत से लोगों ने इस पे मतलब लोगों ने कहा था कि नहीं इतना लोग अडॉप्ट करेंगे, इतना इसका यूज़ नहीं होगा, बट आज हम लोग कितने ज़्यादा डिपेंडेंट है इंटरनेट पे हर छोटी से बड़ी चीज़ के लिए लेकर। तो उसी तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी फ्यूचर है ना, आई थिंक उस पर भी डिपेंडेंस आगे कुछ सालों में आएगी। तो अच्छा है कि यूपी बोर्ड अभी से उसकी तैयारी कर रहा है और बच्चों को उसके बारे में सिखा रहा है, पढ़ा रहा है। इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव मूव।
आगे बढ़ते हैं. Karnataka, a technology and innovation pioneer, is now betting big on blockchain technology. The Karnataka Skill Development Corporation has issued a tender for the implementation of blockchain-based digital certificates for skill-based courses. KSDC is the flagship entity for the Government Tool Room and Training Center, a Karnataka government educational institution that provides skilled people and technical services to existing and new companies. GTTC provides a variety of technical courses such as computer-aided design, computer-aided manufacturing, computerized numerical control, rapid prototyping, and others. GTTC offers both long-term and short-term skill training courses. Candidates will get certificates after successful completion of the courses. These certificates can now have a digital tinge which could enhance their credibility, as per Ashwin D. Gowda, Managing Director of KSDC. He said they will finalize the tender titled Comprehensive Blockchain-Enabled Digitization of Examination and Centralized Student Placement Platform for GTTC in a few weeks. तो यहाँ हम देख रहे हैं किस तरह से हम बात ही कर रहे थे ब्लॉकचेन एडॉप्शन की, तो यहाँ पर कर्नाटका में GTTC जो एक गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पर वो जो है कुछ कंपनीज़ को, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है, नई कंपनीज है, उनको स्किल्ड पीपल भी प्रोवाइड करते हैं और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं. और उन्होंने ये शुरुआत की है कि वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कोर्सेज देंगे जहाँ पे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग सिखाई जाएगी, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सिखाई जाएगी और रैपिड प्रोटोटाइपिंग सिखाई जाएगी. और इन कोर्सेज़ के जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो ब्लॉकचेन पर होंगे, तो अच्छा है, इससे ऑथेंटिसिटी भी मिलेगी, एक रिकॉर्ड भी रहेगा और क्रेडिबिलिटी भी मिलेगी. तो आई थिंक अगेन इट्स अ वेरी गुड मूव. यस, तो 30,000 ब्लॉकचेन सर्टिफिकेट्स वो देने वाले हैं. एंड बिल्कुल सही कहा आपने, इट्स अ ग्रेट मूव, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी जैसे कोई भी पॉलिटिशियंस हो या फिर सेलिब्रिटीज़ हो, तो उनकी अगर क्वालिफिकेशन की, फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियंस की बात आती है, तो ये बोला जाता है कि ये पता नहीं कहाँ से सर्टिफिकेट्स हैं या फेक सर्टिफिकेट्स हैं. तो आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है. ब्लॉकचेन नहीं थी ना तो वो बिल्कुल, तो अभी ब्लॉकचेन ने सब चीज़ें आई थिंक बहुत ज़्यादा सहूलियत हो गई है, तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं, आगे जो एम्प्लॉयर्स होंगे या आगे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, 10th के बाद हमें अपनी मार्कशीट सबमिट करनी होती है. हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो हमें अपने मार्कशीट सर्टिफिकेट्स हम लोग आगे देते हैं, तो उन लोग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे सर्टिफिकेट्स. मूविंग ऑन, as leading banks such as HDFC and ICICI expand their digital rupee offerings, India's push towards digital currency adoption has gained traction. HDFC recently launched a digital rupee app to promote the future of money, and ICICI Bank collaborated with online retailer Pine Labs to enable digital rupee payments. In the fourth quarter of 2022, India launched a digital rupee pilot program with 4 national banks, and the government expanded the program to at least 9 banks, including State Bank of India, Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, IDFC First Bank, and HSBC Bank. According to Finance Minister Nirmala Sitharaman, as of February 28, 2023, the pilot program had more than 15.8 million digital rupees in circulation. The Reserve Bank of India is overseeing the inclusion of CBDC as a payment option in the pilot program, but some customers are concerned about technical glitches. तो यहाँ पे 2022 के फोर्थ क्वार्टर में इंडिया डिजिटल करेंसी का ये जो अपना पायलट प्रोग्राम है वो लेकर आई, तो शुरू में हमने देखा कि इतना ज़्यादा अडॉप्शन नहीं हुआ और कुछ ग्लिचेस भी थे. हालांकि अभी भी जो कुछ यूजर्स हैं वो टेक्निकल ग्लिचेस फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे तब ये 4 बैंक्स के साथ लाई थी. अभी 9 बैंक्स, जिसमें कि काफ़ी बड़े बड़े नेशनल बैंक्स हैं. इसके साथ अभी बैंक ऑफ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भी ओवरसी कर रहा है अडॉप्शन डिजिटल रुपी का. तो अब देखें तो ICICI बैंक जो है उसने पाइन लैब के साथ पार्टनरशिप की है ये वर्चुअल करेंसी के लिए, और HDFC भी अपना वर्चुअल करेंसी पेमेंट के लिए जो है एक ऐप ले आया है. तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ये फ्यूचर ऑफ मनी जो है इसको अडॉप्ट करने में सभी लोग हेल्प कर रहे हैं. आई थिंक इनका जो पायलट प्रोग्राम है गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स द फ्यूचर. लेकिन जो ये टेक्निकल ग्लिचेस हैं अभी भी ये थोड़ा सा कंसर्न बना हुआ है. बिल्कुल, टेक्निकल ग्लिचेस आई थिंक विशाखा विद टाइम जाएंगे. आई थिंक हर चीज़ जो नई शुरू होती है उसमें कुछ ना कुछ ग्लिचेस, कुछ ना कुछ हर्डल्स तो ज़रूर होते हैं. लेकिन RBI का ये एक प्रोजेक्ट है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा से वो चाहते थे कि चाहे वो क्रिप्टो करेंसी के थोड़े खिलाफ हैं, थोड़े वहाँ पे उनको कुछ मन में है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, है ना. तो उस तरफ उनका थोड़ा सा है, थोड़ा सा वो उस
में थोड़ा सा रुक कर और बहुत संभल के डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते थे। हमेशा से उन्होंने कहा CBDC पायलट लेकर आएंगे, उन्होंने कहा, और अच्छा सक्सेसफुल, इंडिया ने काफ़ी सक्सेसफुली इसको एग्जीक्यूट किया है और ग्लोबली भी हम देख रहे हैं CBDC बहुत सारे देश लेकर आ रहे हैं। तो CBDC इज समथिंग आई थिंक जो आगे बहुत सारी कंट्रीज लेकर आएंगी एंड उससे भी पेमेंट्स बहुत बॉर्डरलेस एंड सीमलेस हो जाएंगे। बढ़ते आगे, despite China's existing blanket ban on digital assets, the country's cryptocurrency sector is evolving in response to new developments. According to a recent update, the country's Supreme Court issued guidelines regarding cryptocurrency-related disputes, stating that settling a debt with a small amount of digital asset would be legal if both parties agreed. According to Wu Blockchain, on May 7th, the court acknowledged that cryptocurrencies have network virtual properties in this scenario. However, the court stressed that this approach would be permitted only if there were no other valid reasons to oppose it. If it is agreed between the parties that a small amount of virtual currency shall be used to compensate the debts arising from mutual exchange, labor service, and other basic relations, if there are no other invalid causes, the People's Court shall recognize the contract as valid, the court ruled. The Supreme Court also clarified that if one party agrees to transfer cryptocurrencies to another, but the receiving party is unable to fulfill their end of the bargain due to policy constraints, the court will determine compensation based on the actual value of the property accepted by the receiving party at the time of contract signing. This latest development highlights China's shifting stance on digital assets, which could have serious consequences for cryptocurrency investors. तो चाहे शुरुआत में चाइना ने कहा कि वो बैन कर रहा है और एक ब्लैंकेट बैन भी लगा हुआ था डिजिटल एसेट्स पे, क्रिप्टो करेंसीज पर, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज इतनी बड़ी हो गई हैं विशाखा, इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, इतना ज़्यादा इसका आई वुड से स्प्रेड है कि आप देखना आगे जाके चाहे बैंक्स हो, क्रेडिट कार्ड्स हो, डेबिट कार्ड्स हो या फिर चाइना जैसी कंट्रीज़ हो, नहीं बैन कर पाएँ। कहीं ना कहीं वो ललचाएंगी इसे एक्सेप्ट करने के लिए, और हम कहीं ना कहीं वो चीज़ें देख भी रहे हैं। अब जैसे कि चाइना ने कहा है कि अगर कोई डेट है उसे पे करना है क्रिप्टो करेंसी में, कर दिया जा सकता है अगर दोनों पार्टीज अग्री करते हैं, अगर अमाउंट छोटा सा है और उसमें कोई वैलिड रीज़न नहीं है उसे अपोज करने का। और ये भी कहा गया है कि अगर कोई डेट पे करना चाहता है लेकिन रिसीविंग पार्टी किसी वजह से, किसी रेगुलेशन की वजह से, किसी कंस्ट्रेंट की वजह से वो क्रिप्टो करेंसी नहीं एक्सेप्ट करना चाहती, तो भी उस डेट का जो भी कॉम्पनसेशन है वो गवर्नमेंट तय करेगी उस प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने के वक्त जो उसकी वैल्यू होगी उसके हिसाब से। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव मूव दैट चाइना कहीं ना कहीं धीरे धीरे उस ब्लैंकेट बैन में से हट रहा है और कुछ कुछ देख रहा है, लूप होल्स नहीं कहूँगी कि, लेकिन कहाँ कहाँ कितना वो एडजस्ट करके एक्सेप्ट कर सकता है क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट वर्ल्ड को। बिल्कुल सही कहा आपने। तो 4 सितंबर 2017 में चाइना ने जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है वो उसको बैन किया था, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और ये भी कहा है कि भी एक अपडेट है कि जितने भी जो ये लोग होंगे वो अपनी कंप्लेंट्स लेकर आएंगे, और जो क्रिप्टो 4 सितंबर 2017 में जबकि बैन किया था, तो उसके बाद की जितनी भी ट्रेडिंग होगी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसके पहले के जितने भी केसेस होंगे वो लेगा उन्हें। बिल्कुल। मूविंग ऑन, Europe's landmark crypto regulation could serve as a model for the US, a top American regulator has said. Hester Pierce, a commissioner at the Securities and Exchange Commission, who has previously been outspoken in her support for crypto, expressed her admiration for the speed at which the European Union put together its digital finance package. Markets in crypto assets MiCA was passed by European Parliament last month, putting in place a comprehensive framework for crypto regulation across the 27-country bloc. MiCA can serve as a model for us, Pierce said at the Financial Times Crypto and Digital Assets Summit in London on Wednesday. She added that the UK's efforts to build a crypto-friendly regulatory regime could also serve as inspiration to the US. She said she was in favor of a system that informs customers of the risks and figuring out a regulatory model that allows for innovation, which I think is something that you all take very seriously here. तो हेस्टर पियर्स जो कि एसईसी कमिश्नर हैं, वो एक क्रिप्टो फ्रेंडली एसईसी कमिश्नर उन्हें कहा जाता है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव रही हैं हमेशा से क्रिप्टो के लिए, और क्रिप्टो के सपोर्ट में ही उन्होंने हमेशा बात की है। तो अब जो कि यूरोपियन यूनियन अपना जो EU जो माइका लेकर आया है, यानी कि एक सबके लिए एक फ्रेंडली क्रिप्टो फ्रेमवर्क है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो कि लास्ट मंथ ही उन्होंने लॉन्च किया। तो अब हेस्टर का ये कहना है कि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है और एक तरह से एक मॉडल के रूप में देखा जाएगा US के थ्रू, और उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और इसकी वजह से यूरोप को बहुत ज़्यादा बिजनेस में भी हेल्प हो सकती है, क्योंकि इतने क्लियर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वो लेकर आया है।
तो यहाँ HDFC ने ना सिर्फ अप्रिशिएट किया है जो माइका है, जो यूरोपियन यूनियन में रेगुलेशन है टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसीज, उन्होंने ये भी कहा है कि हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए यूके के जो एफर्ट्स है टुवर्ड्स गेटिंग क्रिप्टो फ्रेंडली रिजीम। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो अप्रिशिएट कर रही हैं जो अलग अलग कंट्रीज जिस तरह से क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रही हैं या रेगुलेशंस को बहुत सीमलेस या क्लैरिटी उनमें लेकर आ रही हैं, क्योंकि उनका रुझान जैसे कि आपने कहा अभी उनका रहा है हमेशा क्रिप्टो की तरफ। तो आई थिंक यूएस भी बहुत जल्द, अगर ऐसा रुझान हम देखते रहे तो जल्दी से कुछ अच्छे रेगुलेशंस लेकर आएगा क्रिप्टो के लिए। आगे बढ़ते हैं। On May 7th, Binance, the world's largest crypto exchange, suspended Bitcoin transactions. It cited network congestion and stated that it was working on a fix. A couple of hours later, the company reported that transactions had resumed again. However, on May 8th, Binance suspended Bitcoin withdrawals again due to the large volume of pending transactions. To prevent a similar reoccurrence in the future, our fees have been adjusted. We will continue to monitor on-chain activity and adjust accordingly if needed, Binance said in a tweet. Our team has also been working on enabling BTC Lightning Network withdrawals, which will help in such situations. The price of Bitcoin continues to drift downwards and is now at $27,981, down 3.16% in the last 24 hours. तो यहाँ Bitcoin ऑर्डिनल्स में बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन मिल रहा है, क्योंकि एक्चुअली जैसे ERC20 टोकन की हम बात करते हैं तो इथेरियम ने ERC20 टोकन का इजाद किया, डेवलप किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बनाया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सारी NFTs आई जो कि अभी तक बिटकॉइन में लैग कर रहा था। बिटकॉइन में अब तक कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई ऐसा BRC20 टोकन नहीं था। वो ऑर्डिनल्स भी लेकर आया तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट पर लेकर आए, इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि सातोशीज पे इंस्क्राइब किए जाते हैं इस तरह से। तो जब BRC20 टोकन आया तो एकदम से बहुत ट्रैक्शन मिला उस पर, क्योंकि ना सिर्फ ऑर्डिनल्स को मिला बल्कि BRC टोकन पे जो है आप टेक्स्ट भी इंस्क्राइब कर सकते हैं और बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं NFTs के अलावा। तो बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन मिला, जो इतने ज़्यादा ट्रैक्शन की वजह से ही जो है बाइनेंस पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गया, नेटवर्क कंजेशन हो गया, ट्रांजैक्शन पेंडिंग हो गई। इस वजह से जो है फ़ीस भी बढ़ी, नेटवर्क फ़ीस भी बढ़ गई है। और अब इसीलिए बाइनेंस ये चाह रहा है कि आगे ऐसा ना हो, तो वो BTC लाइटनिंग नेटवर्क जो है उसे लाने की कोशिशों में लगा हुआ है फिलहाल। जी, BTC हमेशा ये जितने भी उसके ट्रेडर्स या यूज़र्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करता रहता है। तो अभी क्योंकि 12 घंटे के अंदर 2 बार ये जो विड्रॉल्स हैं ये रुक गए थे, जो बिटकॉइन ट्रेडिंग है रुक गई, तो बाइनेंस ने इसीलिए उनकी सहूलियत के लिए ही ये जो लाइटनिंग नेटवर्क है वो आगे लाने वाला है। Moving on, the average cost of sending a single transaction on the Bitcoin blockchain has risen to about $20, the highest since April 2021. Increasing demand for BTC blockchain space appears to have been prompted by increasing activity on ordinals protocol and tokens generated utilizing the BRC20 standard. Binance had to halt BTC withdrawals twice on Sunday due to network congestion, but the cryptocurrency exchange later resumed operations after shifting $4.4 billion in assets. Bitcoin transaction fees have reached their highest level in 2 years thanks to increased interest in ordinals protocol and demand for BRC20 token generated on the Bitcoin blockchain. According to on-chain data, BTC transaction costs reached a 2-year high of $19.21. The cost of sending a transaction on BTC's blockchain has not climbed so high since April 2021 when fees skyrocketed to $62. तो यहाँ अभी हमने बात की कि BRC20 टोकन और ऑर्डिनल प्रोटोकॉल की वजह से ही जिसमें इतना इंटरेस्ट आ गया है उसकी वजह से ही जो है थोड़ा सा जो उसकी बिटकॉइन की फ़ीस है वो बढ़ गई है, जो कि 2 साल से अप्रैल 2021 में इतनी फीस नहीं देखी गई जितनी की अब देखी जा रही है। हालांकि हाई $62 रही है। आई होप वो दोबारा टाइम ना आए, क्योंकि इतनी ज़्यादा फीस कोई भी पे नहीं करना चाहता है। तो अब इसमें आई थिंक हम बाइनेंस के लाइटनिंग नेटवर्क का ही वेट कर सकते हैं। एक्चुअली वो लाइटनिंग नेटवर्क आ जाएगा तो आई थिंक वो फीस मतलब जल्दी ट्रांजैक्शंस भी निकलेगी, कोई कंजेशन नहीं होगा और फीस भी जो है फिर कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि जब ट्रांजैक्शंस पेंडिंग होती है तभी गैस फीस जो है वो बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। Leading cryptocurrency exchange Binance's non-fungible token marketplace said Tuesday it's planning to add support for ordinals or Bitcoin NFTs later in May, though an exact date was not announced. Binance NFT, which already supports NFTs on Ethereum, Polygon, and its native BNB chain, plans to expand its offerings by allowing traders to purchase ordinals on the Bitcoin network. Collectors can soon buy and sell inscriptions or NFTs created on the Bitcoin network, expanding the reach of the nascent ordinals ecosystem. Additionally, in order to help onboard users to Bitcoin NFTs, Binance will allow traders to purchase Bitcoin-based NFTs with their Binance accounts, simplifying the process for users. तो यहाँ Binance बहुत सपोर्ट कर रहा है पहले लाइटनिंग नेटवर्क और अब Binance वॉलेट से ही जो है सारी Bitcoin ऑर्डिनल्स की जो है वो
ट्रांजैक्शंस होती रहेंगी। एंड ये तो होना ही था, जब इतना ज़्यादा ट्रैक्शन बिटकॉइन NFTs को, ऑर्डिनल्स को मिल रहा है, तो बाइनेंस क्यों नहीं उसे अपने अपने NFT मार्केट प्लेस पर लाएगा। तो ऑलरेडी वो इथीरियम के NFTs, पॉलीगॉन के NFTs को तो, और BNB चेन के NFTs को तो सपोर्ट करता ही, और अब बिटकॉइन ऑर्डिनल्स को भी उन्होंने अपने मतलब उसको भी सपोर्ट करेंगे ऑन देयर प्लेटफॉर्म। एंड ऑब्वियसली दिस इज टू कैश इन ऑन द क्रेज एंड द ट्रेंड ऑफ बिटकॉइन ऑर्डिनल्स। तो यहाँ पे आई थिंक बाइनेंस अपनी जो कम्युनिटी है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहता है और अपने इकोसिस्टम को भी ग्रो करना चाहता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग हमेशा यूजर्स के अच्छे के लिए कुछ ना कुछ के इनिशिएटिव्स ऐसे कुछ सोचते रहते हैं और उनके लिए लेके आते रहते हैं। मूविंग ऑन, Starburst has launched its Juicyverse experience within the mall, a metaverse mall that is accessible via any web-enabled device. The Starburst Juicyverse allows users to visit virtual mall and participate in virtual entertainment by utilizing the Metaverse Engine 2.0, which allows users to connect from any device via a web browser. The first major brand partner is Wrigley, which has launched Starburst Juicyverse on the mall's second floor. The Juicyverse includes a virtual Starburst store where guests can enter the virtual experience by scanning any QR code. तो द मॉल जो कि यहाँ पे एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म है, उसके सेकंड फ्लोर पे जो पूरा एक मॉल है, एक वर्चुअल मॉल में हम लोग उसमें घूम सकते हैं। और अब जो एक ये ब्रांड है Wrigley ने सेकंड फ्लोर पे अपना Juicyverse सेटअप किया है। तो आई थिंक ब्रांड्स तो वैसे भी एम्ब्रेस कर ही रहे हैं मेटावर्स को, और ये जो प्लेटफॉर्म है द मॉल, ये 100 स्टोरी मॉल बनाना चाहते हैं। सो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट थिंग, और यूज़र्स के लिए आई थिंक हमें ऐसे ही कुछ फ़न जिनको जो एक शॉपोहॉलिक्स है या जो फ़न लविंग है वो ऐसे मॉल्स पे जा सकते हैं और दे कैन। विशाखा सोचो अगर 100 फ्लोर्स का कोई मॉल एक्चुअल रियल प्रॉपर्टी पर हो, कितने फंड्स लगेंगे। फिर अगर कोई शोरूम नहीं चलेगा, बिकॉज वी ऑल नो अब ऑनलाइन शॉपिंग का इतना ज़्यादा क्रेज आ गया है कि एक्चुअली मॉल्स खाली पड़े हैं। मॉल्स में पीपल आर नॉट एबल टू गेन दैट मच प्रॉफिट कि वो अपने रेंटल्स और वो सब भी दे पाए, तो दे आर ऑल इन लॉसेस। तो यहाँ आई थिंक शिफ्टिंग फ्रॉम रियल वर्ल्ड टू वर्चुअल वर्ल्ड एंड इन टू मेटावर्स एंड ऐसी एस्पिरेशंस ऑफ हैविंग 100 फ्लोर मॉल, उसको पूरा करना इज़ वेरी वेरी गुड। करेक्ट। तो ये तो 8 साल लग गया द मॉल को बनने में। ओके, सो आई थिंक अब वेट रहेगा कि 100 स्टोरी जो मॉल है ये कब तक रेडी हो जाएगा। जी। सो दैट्स ऑल इन द वीकली रैप। दिस इज मी विशाखा ठाकुर साइनिंग ऑफ, एंड दिस इज मी रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू 3.0 TV and have a great weekend. For more such updates, please log on to www.3versetv.io or scan the QR code.